So now we will talk about melting and freezing first, and then we will talk about condensation and evaporation later. Melting is a process in which any solid thing changes into liquid. कोई भी हमारे पास जो solid object है that will start changing its shape into a liquid form, right? It can be ice into water, it can be iron, it can be gold, silver, plastic, any object. When they are changing from a solid state to a liquid, this is a melting process. And how this happen, how the things start melting, it depends on the temperature. If we talk about the ice will just start melting on the room temperature. Room temperature क्या होता है? The normal temperature, we don't have to provide an extra amount of heat. आप नॉर्मली आइस को रखते हैं, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द हीट इन द सराउंडिंग, ठीक है. अगर आप उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते करेंगे तो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग मोर क्विकली, ज़्यादा जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है. Some of the objects, like if we are having gold, silver or iron, they need some extra amount of temperature to let those objects melt. For gold we have to provide more than 1000 temperature. For iron maybe we have to provide 1500 or 2000 temperature. तो जितना ज़्यादा आप, it depends on the object, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इट स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है. So what you have to keep into your mind, the concept behind melting: when a solid object is changing into liquid state, this is melting. और इसकी जो common example है, I will just give it to you. Ice का water में change हो जाना. Ice is a solid thing and when it change into water it is melting, right? Then we will talk about freezing. Freezing में क्या होता है? When the object starts freezing and a liquid thing is changing into a water, सॉरी, अ लिक्विड थिंग इज चेंजिंग इनटू सॉलिड. कोई भी जो लिक्विड ऑब्जेक्ट है, हमने उसको हीट उसमें से रिमूव कर देते हैं, टेम्परेचर को माइनस करते हैं, लो करते हैं, एंड इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग, और वो फ्रीज करना शुरू कर देता है. दैट इज़ आ फ्रीजिंग प्रोसेस. सो व्हाट यू हैव टू कीप इन टू योर माइंड: व्हेन अ लिक्विड इज चेंजिंग इनटू सॉलिड by removing the temperature or by keeping the temperature low, this process will be freezing. और इसकी एग्जांपल में आप बता सकते हैं when water is changing into ice. जब हम पानी को माइनस डिग्री में टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ टेम्परेचर को बहुत लो कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है 25, और आपने देखा है रेफ्रिजरेटर में आपका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा भी अगर हो तो वो 1 to 7 होता है, ठीक है. तो 1 to 7 हम, और अगर हम फ्रीज़र की बात करें तो दैट इज़ हैविंग टेम्परेचर 1 or 2. तो अगर टेम्परेचर लो रखेंगे तो द थिंग्स विल स्टार्ट फ्रीजिंग. इसलिए आपका जो रेफ्रिजरेटर का ऊपर फ्रीज़र वाला पोर्शन होता है, दैट इज़ यूज फॉर फ्रीजिंग, लेटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रीज, जिसमें बर्फ़ जमती है, बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी लो देयर, राइट. सो मेल्टिंग इज़ changing of a solid into liquid, and freezing is changing of a liquid into solid, right. इसकी एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने माइंड में रखना है. आइस की हम एग्जाम्पल कर रहे हैं. आइस when changing into liquid it is melting, and when liquid is changing into solid, this will be the example of freezing. ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है व्हेन द लिक्विड इज़ चेंजिंग इनटू गैस, राइट. जैसे जब वाटर को बॉयल करते हैं, इट स्टार्ट बॉइलिंग, और आप देखते हो कि ऊपर आपको स्टीम नज़र आ रही होती है, और नीचे जिस बाउल में आपने वाटर रखा होता है उसका जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है. Why this happen? Because some of the water is evaporating because we have provided the heat. हम heat provide कर रहे हैं, and the water because of the heat it start evaporating, because वो lighter हो जाता है weight में and it start evaporating. It's not necessary that the water will start evaporating when we provide the high amount of temperature. Normally भी अगर आप धूप में भी, नॉर्मल जो आपका वेदर है, अगर उसमें भी आप किसी ग्लास में पानी रखो एंड यू विल चेक आफ्टर 1 or 2 days द लेवल ऑफ द वाटर विल बी लेसन, कम हो जाता है. क्यों वो कम हो जाता है? बिकॉज हमारे इन्वायरमेंट में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसकी वजह से भी वाटर इवेपोरेट करना शुरू हो जाता है, स्टीम में चेंज होना शुरू कर देता है, बिकॉज स्टीम इज़ वेरी लाइटर
जो लाइटर चीज़ें होती हैं दे स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, वो ऊपर जाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। दैट्स वाई स्टीम इज़ ऑलवेज मूविंग अप, ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है। So, evaporation is a process in which the water or liquid is changing into steam or a gas, right? Condensation इसका opposite है. Condensation is a process in which the steam is changing into liquid. Evaporation में हमने क्या देखा कि water जो है वो steam में change हो रहा है. कंडेंसेशन में क्या होता है, स्टीम जो है या गैस जो है इट विल चेंज इनटू लिक्विड, वो दोबारा से वाटर में चेंज हो जाती है। हाउ? बिकॉज टेम्परेचर कम हो जाता है, राइट। अब इसकी एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर कभी आपकी मामा घर में कुकिंग कर रही हैं, बल्कि मोस्टली करती हैं, when she put a lid on the bowl, जब वो किसी बाउल के ऊपर गर्म खाने के ऊपर लिड देती हैं, तो जब लिड को आप हटाओ, आप देखो उस लिड के नीचे पानी आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जिसमें जो लिक्विड है वो स्टीम में चेंज हुआ और स्टीम दोबारा से लिक्विड में चेंज होती है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, आई हैव जस्ट मेक द वाटर बॉयल टू लेट यू नो द टू कॉन्सेप्ट, जिसमें एक हमारे पास इवेपोरेशन है एंड सेकेंड वी हैव कंडेंसेशन, राइट। लेट मी शो यू वन थिंग, सी, this is the bowl of water that I have just boiled. If you are able to see, you will see the steam is going up. See, this is the boiled water and the steam that you are able to see, it's because the temperature was high, the water is boiling and the molecules are excited and they're just going up, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी और थोड़ी देर बाद आप देखें, द लेवल ऑफ द वाटर विल बी लेसन। अभी आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। अगर मैं इसको आपको बॉयल करते हुए दिखाती तो आप देखते हो जितना आपने बॉइलिंग वाटर रखा होता है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ evaporation when the water is changing into steam, right? अब हम कंडेंसेशन किसे कहते हैं? कंडेंसेशन हम कहते हैं when the steam is changing into liquid, ठीक है। अब मेरे पास एक, आई एम जस्ट यूजिंग दिस, अब आप देखो ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, नो वाटर ओवर इट, आई एम जस्ट कीपिंग इट ओवर दिस बाउल। मैंने इसको इस बाउल के ऊपर, इस मग के ऊपर रख दिया है, ठीक है। We have to wait for few seconds and I'll show you. After few seconds, the steam that was going up, because the temperature is low, we are not providing any kind of heat to it, the steam will again change into the water बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम होता है, कोल्ड टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है, तो जो स्टीम है वो दोबारा से वाटर में चेंज हो जाती है, ठीक है। वाटर साइकिल जो हमने पढ़ा हुआ है अपने साइंस में, वो भी यही प्रोसेस है। द वाटर इज़ इवेपोरेटिंग एंड इट्स गोइंग अपवर्ड। स्टीम जो है वो ऊपर ऊपर जाना शुरू हो जाती है बिकॉज इट्स लाइटर इन वेट। जैसे ही वो ऊपर जाती है, ऊपर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम होता है, इट स्टार्ट कंडेंसिंग, जिसको हम कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है। एज दे गॉट हैवी, जब वो हैवी हो जाते हैं, इट स्टार्ट रेनिंग, तो बारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स इनफ ऑफ द टाइम, आई शुड टेक ऑफ द प्लेट एंड शो यू व्हाट्स हैपनिंग। सी, अब आप देखें, ये देखा आपने, फर्स्ट आई हैव शोन यू द प्लेट, इट वॉज वेरी क्लियर। अब आपको ये जो ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द वाटर ड्रॉपलेट्स। अभी भी इसमें से स्टीम निकल रही है। सो दिस हैपन, अब मैंने टेम्परेचर को ख़त्म कर दिया हुआ था, अभी कोई इसको बॉयलिंग या कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, नॉर्मल टेम्परेचर था एंड स्टार्ट यू नो द स्टीम इज़ चेंजिंग इनटू वाटर अगेन। अगर मैं ये लिड ना रखती तो ये जो स्टीम है ये हवा में डिस्पर्स हो जानी थी हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर लिड रखा एंड आई हैव सीन इट्स अगेन चेंजिंग इनटू द वाटर, जैसे आपको इस लिड के ऊपर ये शाइन नज़र आ रही है। यस, कैन यू सी नाउ? ये आपको जो शाइन नज़र आ रही है, दीज आर द वाटर ड्रॉपलेट। स्टीम थी जो वाटर में चेंज हो रही है। आई एम जस्ट कीपिंग इट ओवर हेयर अगेन एंड लेट्स सी कि थोड़ी देर बाद क्या होता है। So this is the concept about the condensation and evaporation. Evaporation is the process, I'm just repeating, in which the water is changing into steam, and condensation is a process in which the steam or the gas is again changing into water, right? So this was the concept about evaporation and condensation, melting and freezing.
So class 4 we have class 5 we have learned the concept about condensation, evaporation, melting and freezing. I'm just revising it once again because after that we have to do the exercise. In fact, you have to tell me what is melting. Iman, can you tell to your class or to me like what is the melting process? Very right. Melting is a process in which the solid things start changing into liquid. Very good. And what about freezing? Ali Akmal, you have to tell. Freezing is the process in which the liquid is changing into solid. Very good. What about condensation? Ramisha, आपने बताना है what is condensation? Very good. Condensation is when a gas is changing into liquid, and evaporation is Khadija. It's your turn. You have to tell what is evaporation. Very good. Changing of liquid into gas, right? अब हमने revise भी कर लिया and you have also seen the process of evaporation and condensation. Now we will do the exercise work. पेज नंबर 75 पर है. Complete the following sentences by putting the following four words into them. Four words क्या हैं? Condensing, फ्रीजिंग, एवेपोरेटिंग एंड मेल्टिंग. ठीक है, इसीलिए मैं अभी आपको रिवाइज करवा रही थी बिकॉज आपकी एक्सरसाइज इससे रिलेटेड है. नाउ व्हाट ए है चेंजिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड इन्वॉल्व्स. अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें तो व्हाट विल हैपन? क्या प्रोसेस यूज हो रहा है? वेरी गुड, इट्स मेल्टिंग. नंबर बी देखें. Changing a gas into liquid. We are changing the gas into liquid. You have just seen that process. Very good. Condensing. Number C. Changing a liquid into gas. Now we are changing the liquid into gas. Shabash Herman. It's evaporation. Last but not least, changing a liquid into solid. Now we are changing the liquid into solid. Very good. It's freezing. Right?